Good afternoon, and this is for all the students who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked, people made thousands of crores of rupees, and the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done, and we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate, we want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Thank you. नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज एक बार फिर अपने नरेंद्र भाई की सरकार ने दर्शा दिया कि जनहित के मुद्दों पर बहस करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। संसद का सत्र चल ही रहा है, अब तो खैर वो सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया है। उस संसद के सत्र में नेता विपक्ष होने के नाते आज राहुल गांधी ने प्रस्ताव दिया कि जो इस समय नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के एक स्वस्थ बहस कर ली जाए, और उस बहस इस समय ज़रूरी भी है। बच्चों को भी लगेगा कि सरकार ने और सदन ने उनके इस समस्या पे पूरा ध्यान दिया। ये बहुत ही जेन्युइन बात थी जो प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बात कही, नेता विपक्ष के तौर पर ये बात उन्होंने कही, उसको सुना जाना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है कि एक तो मोदी जी और दूसरे उनके वो क्या स्पीकर, दोनों लोग का मंशा होती है कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं उन पर बहस ना हो तभी ठीक है। और आप लोगों को याद होगा कि इसी रवैये के चलते उनके पिछले कार्यकाल में भी सदन बहुत कम दिन चला था, जितना कि नहीं चलना चाहिए। दोनों ही 5 साल और 5 साल दोनों ही बार सदन की चलने की दिन थे बहुत कम थे। जो अमूमन जितने दिन सदन चलना चाहिए उसका 1/3 सदन चले थे। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि सदन प्रॉपर रूप से चले और उस पर बहस हो, क्योंकि अगर बहस होगी तो मुद्दे सामने आएंगे तो ऐसे तमाम मुद्दे भी सामने आ सकते हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं चाहती। तो जो नीट परीक्षा है कि जो विफलता है या इस तरीके की और भी जो तमाम पर्चे लीक हुए हैं, करीब अभी तक 70 पर्चे लीक हो चुके हैं, उनके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहती कि सदन में चर्चा हो। वो चाहती है कि मुद्दा इसी तरीके से हवाई में ख़त्म हो जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने जब आज ये प्रस्ताव रखा कि इस नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो जाए, तो उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, कहा कि नहीं करेंगे। और इसके लिए कहा गया कि नहीं, आप राष्ट्रपति ने जो अभी अपना भाषण दिया उस भाषण के मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी पर बहस मुबासा हो ही रहा था कि क्या नाम है, अपने स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया, और फिर सदन जब बैठा तो फिर इसी को लेकर के हो हल्ला मचा। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं
कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप व्यवस्था डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते थे कि नीट परीक्षा के मुद्दे पर बहस हो और इस समय वो जेन्युइन भी है और ज़रूरी भी है, इससे अच्छा मौका और कर होगा, लेकिन भारतीय सत्ता पक्ष नहीं चाहता था, इसलिए दोबारा फिर सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी आप ये मान के चलिए कि इधर 3-4 दिन में सदन में कुल इतनी चर्चा हुई कि नीट परीक्षा पर चर्चा नहीं हुई और सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का हाल है। जो कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी ये कहा जा रहा है कि उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने आचार व्यवहार उसको सुधार लें, संघ ने भी उनको सलाह दी है। लेकिन मेरा ये मानना, मैंने तब भी कहा था कि संघ जो उनको सलाह दे रहा है वो नूरा कुश्ती है। संघ को मालूम है कि जिस समय मोदी जी की सरकार जाएगी संघ के ऊपर भी गाजी रहेगी, इसलिए उसने अभी से नरेंद्र मोदी से दूरी बनानी शुरू कर दी, दिखावे के लिए। दूरी वूरी कहीं कुछ नहीं, लेकिन दिखावे के लिए साहब हमको उनके कामों से कोई लेना देना नहीं है, ये काम हो रहा है। और जैसा मैंने बताया, मैंने पहले ही कहा था, अब वो बातें सामने भी आने लगी। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उनका वही स्वभाव है, शासन करने का वही तरीका है। और उसका एक कारण ये भी है कि वो शासन करने का उनका ये तरीका इसलिए भी है, वो शुरू से कुछ लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, समग्र भारत के और समग्र भारत की जनता के हित के लिए वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए उनका शासन करने का तरीका वही रहेगा, डांट डपट 420 ये सब करना, पूरा मतलब ये सब करना उनका काम रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आगे एक काम और भी शुरू हो गया, साथ ही साथ जो होना ही था, उनके भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार का जो था लंबा गठबंधन वहाँ पर चला लंबे समय तक, बिहार में अभी भी चल ही रहा है और ये माना जाता, और उसी गठबंधन के चलते नीतीश कुमार ने इनकी सरकार को मान्यता भी दी नरेंद्र मोदी साहब की इस बार, वरना इनको शायद बहुमत भी नहीं मिल पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा तो भाजपा, जब वो और भी तमाम राज्य सरकारों को खा गई, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे क्या नाम आपका वो कर्नाटक हो, चाहे जो भी हो, या सभी अभी आज हेमंत सोरेन बेचारे वापस निकले हैं, तो उसके चलते वो काम जो है नीतीश कुमार को खाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि मौका मिलते ही ये काम शुरू होगा। या तो भारतीय जनता पार्टी को वो जो मौका मिला था जब उनके पास बहुमत नहीं था, तो बिल्कुल नहीं सहायता देनी चाहिए थी। लेकिन हर आदमी अपने आप को चतुर समझता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी अपने आप को कम चतुर नहीं समझते हैं, तो उन दोनों ने उनको मदद दे दी, क्या नाम है, मदद दे दी कि चलिए आप सरकार बनाइए, और वो तुरंत मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ने तय कर लिया है कि अगली बार बिहार में चुनाव उनके चेहरे पर होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो वो जीतेगी तो जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया, ये बात सामने आ गई। और साथ ही साथ ये भी अंदर खाने उभर के सामने बात आ रही है कि नीतीश कुमार के सांसदों को भी तब तक अगर संभव हो तो खरीद फरोख्त करके भाजपा में मिला दिया जाए, ये बात सामने आने लगी। 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ क्या खेल चल रहा है। अब नीतीश कुमार भी कोई जवाबी हमला करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अपने रवैये में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं लाएगी, वो दोनों चीज़ें ही अभी ही सामने आ गई। एक इतने मौजूद मुद्दे पर जिस पर कि लड़के और लड़कों में हाहाकार मचा हुआ है, धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है, एक बहुत ही अच्छी सी क्या नाम है शुरुआत राहुल गांधी ने की कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कर ली जाए ताकि सारे पक्ष सामने आ जाए। वो कानून तो जब बनेगा जब बनेगा, लेकिन ये नहीं किया गया। और आपके क्या नाम दूसरा ये भी कि जो मैंने अभी बताया कि ये नीतीश कुमार के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू हो गया है। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जो है अपनी पुरानी चालों से ही सरकार चलाएंगे। अब वो सरकार देखिए कैसे चलती, ये भी हो सकता है कि इन्हीं चालों के चलते सरकार 5 साल भी चल जाए, ये भी हो सकता है कि गिर जाए। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाएगा कि ये 5 साल अगर मान लीजिए मोदी जी की सरकार चल जाती है तो भी ये निरर्थक और जन विरोधी सरकार ही होगी, इतना तय जानिए।
बाकी देखिए क्या होता है तो सामने आएगा। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।